یہ دائرہ اختیار کون طے کرتا ہے کس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا کس کا نہیں؟ جسٹس مسرت ہلالی کا استفسار۔ آئینی بینچ نے 9 مئی کے مخصوص ملزمان کے ملٹری ٹرائل پر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا 9 مئی کے تمام ملزمان کی ایف آئی آر تو ایک جیسی تھی، یہ تفریق کیسے ہوئی؟ کچھ کا ٹرائل ملٹری کورٹ، کچھ کا اے ٹی سی میں ہوگا۔ جسٹس نعیم نے ملزمان کو ملٹری کورٹس بھیجنے سے متعلق اے ٹی سی کا آرڈر مانگ لیا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کوئی مثال دیں جہاں آئین کو معطل کیے بغیر سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہوا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا جی ایچ کیو کیس 20 سمیت مختلف تنصیبات پر دہشت گرد حملے ہوئے، ہمیں بتائیں کہ ان حملوں کا ٹرائل کیا ہوا۔ آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں فل کورٹ کی تشکیل کے لیے بھجوائی جائیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے سپریم کورٹ میں متفارق درخواست دائر کر دی۔ موقف اختیار کیا کہ آئینی ترمیم کے مقدمات ماضی میں بھی فل کورٹ ہی سنتی رہی۔ فل کورٹ میں وہ تمام ججز شامل ہوں جو آئینی ترمیم کے وقت سپریم کورٹ کا حصہ تھے۔ درخواست میں استدعا جو میں نے فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کی بات کی، یہ صرف جانوروں کو نہیں ہوتی، یہ انسانوں کو بھی ہوتی ہے۔ اور فٹ ڈیزیز فٹ اینڈ ماؤتھ کہتے ہیں نا، تو فٹ جہاں ان کا قدم اٹھتا ہے تو ملک کے خلاف اٹھتا ہے، اور جب ماؤتھ ڈیزیز کیا ہے، جب منہ کھلتا ہے تو گالی گلوچ اور بدتمیزی اور بد تہذیبی ہوتی ہے۔ کہ پچھلی حکومت نے 4 سال کیا کیا؟ یہ پیسہ پچھلی حکومتوں کے پاس بھی تھا پنجاب، وہ پیسہ کدھر گیا؟ تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نہ صرف ہم جانوروں کی بیماریوں کا علاج کریں گے، بلکہ کئی سیاسی جماعتوں کو جو بیماریاں لاحق ہیں اس کا بھی اچھا علاج کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صرف جانوروں کا نہیں بلکہ سیاسی جماعتوں کو لاحق بیماریوں کا بھی اچھا علاج کریں گے۔ منہ اور پاؤں کی بیماریاں صرف جانوروں کو نہیں انسانوں کو بھی ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کا قدم صرف ملک کے خلاف اٹھتا ہے، جب منہ کھلتا ہے تو گالی گلوچ، بدتمیزی اور بد تہذیبی ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لائیو اسٹاک کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا دولتی معیشت سنبھل رہی ہے، ملک معاشی استحکام کی طرف گامزن ہے۔ سڑکیں بنانے سے قومیں ترقی نہیں کرتی، جیسے بیان دینے والوں کی عقل پر ماتم کرتی ہوں، جہاں سڑکیں بنتی ہیں وہاں ترقی آتی۔ زراعت کے حوالے سے ہم ایک نفرت دیکھ رہے ہیں حکومت کی نظر کے اندر، اس ملک کے کاشتکار کے خلاف ایک نفرت ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ فیصلے کہاں سے آ رہے ہیں، وہ فیصلے کس مجبوری میں کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی کسان دوست، کاشتکار دوست فیصلے نہیں ہیں۔ وہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ صرف اچھی سڑک دینے سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، ادارے بیچنے سے نہیں بلکہ مضبوط کرنے سے ملک آگے بڑھے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ حکومت پر برس پڑے، کہتے ہیں حکومت کی پالیسیاں کاشتکار کسان دوست نہیں، کاشتکاروں کے خلاف حکومت کی نظر میں نفرت دیکھ رہے ہیں۔ حکومت سپر ٹیکس لگا کر کاشتکار کی زندگی اجیرن بنا رہی ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ تحریک انصاف کا حکومت کو اپنے مطالبات تحریری طور پر نہ دینے کا فیصلہ، اسپیکر سے ملاقات کے بعد مطالبات تحریری طور پر دیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے حکم کے مطابق پی ٹی آئی اپنے مطالبات تحریری طور پر جمع کروائے گی۔ جو ہے اس کے حوالے سے جو ہماری کمیٹی کی ملاقات ہے وہ اس لیے ڈیلے ہوئی ہے کہ میرے خیال میں وہ جو ہمارے ادھر چیئرمین ہیں حکومتی طرف سے، جو ہمارے اسپیکر ہیں ایاز صادق صاحب، وہ میرے خیال میں ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں وہ آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ملاقات خان صاحب کی کمیٹی کی ہوگی اور انشاءاللہ کمیٹی سے بھی بات۔ علی امین گڈا پور پھر وفاق پر برس پڑے، مذاکرات میں تاخیر کی ذمہ داری اسپیکر پر ڈال دی، کہتے ہیں مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات میں تاخیر کی وجہ اسپیکر کا ملک سے باہر ہونا ہے۔ بولے کشکول توڑنا، پاؤں پر کھڑا ہونا ہمارا ویژن، آبادی بڑھ رہی ہے لیکن صوبے نہیں بڑھائے جا رہے، انتظامی یونٹس بڑھانے سے 90% مسائل حل ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن کے قیام اور کارکنان کی رہائی کے مطالبات شامل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات چاہتے ہیں لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی۔ واضح طور پہ صرف 3 جملے ہماری طرف سے آئے ہیں، 3 ڈیمانڈز ہیں۔ نمبر 1 ہمارے اسیران کی رہائی اور وہ جوڈیشل پروسیس کے ذریعے، نمبر 1 وہ کلیئر کٹ ہو گیا۔ نمبر 2 9 مئی کا کمیشن اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا 26 نومبر کا کمیشن۔
अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। महज़ब मुआशरों में एहतजाज पुरअमन होता है, जिंदगी मफलूज नहीं होती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर तबसरा, कहा कि अली अमीन का पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी जलाओ घिराव के बजाय ऊ करके एहतजाज कर लेते। कौम जानती है कि इंतशार, फसाद, जलाओ घिराव आपका वतीरा है। डी चौक एहतजाज ATC ने उमर अयूब, जरताज गुल, शेर अफजल मरवत समेत दीगर की बोली जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी कर दी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में आमिर मुगल समेत तमाम गैर हाजिर मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। उस्मा बुखारी ने हसन न्याजी की फौजी अफसर की वर्दी लहराने की वीडियो शेयर कर दी। वज़ीर इत्तलात ने पंजाब बोली, हफीजुल्लाह न्याजी यकीनन तकलीफ से गुजर रहे हैं। उनकी वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद बेबुनियाद है। हसन न्याजी अपने मामू पर चला गया जो हमेशा से तशद्दुद, दहशतगर्दी, फसाद प्रमोट करता रहा। हसन का जुर्म सिर्फ फौजी वर्दी लहराना नहीं, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। रेफरेंस खारिज, PTI सेनेटर सैफुल्लाह अब्ड़ो अहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली से मुतालिक रेफरेंस का फैसला सुना दिया। सेनेटर सैफुल्लाह अब्ड़ो टेक्नोक्रेट की अहलियत पर पूरा उतरते हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला। कमीशन ने पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत अवान के रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया। फैसला 7 जनवरी को महफूज किया गया था। कराची में जिंदगी की रौनकें बहाल होने लगी। 3 माह से तरसते मुतासरीन को इमदाद मिल गई। पुल से ग़िज़ाई अशिया की गाड़ियों का पहला काफिला पहुंच गया। मुर्गी, अंडे, घी और सब्जियां वगैरह पर मुश्तमिल 40 गाड़ियों के इलाके में एंट्री। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम अशफाक खान के मुताबिक मुतासरीन के लिए लाया जाने वाला इमदादी सामान लोए कुर्रम पहुंचा दिया गया। जिला कुर्रम में अमन का सफर शुरू हो चुका। नुकसान पहुंचाने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। अवाम को सस्ती बिजली देने का ख्वाब पूरा ना हो सका। IMF ने हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। IMF का कहना है कि कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। सेल्स टैक्स छूट से टैक्स आदाब का हुसूल मुमकिन नहीं रहेगा। हुकूमत ने सेल्स टैक्स में कमी पर IMF से राय मांगी थी। IPPs के साथ मुज़ाकरात का असर आम आदमी तक पहुंच चुका। बिजली सारिफीन के लिए कीमतें कम हुई। वफाकी वज़ीर तवन्नाई उवैस लिगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले तमाम IPPs के मुआहदों पर नज़रसानी होगी जिससे अवाम को बहुत अच्छी बचत होगी। मज़ीद 15 IPPs के मुआहदों को काबीना में ले जा रहे हैं। नेपरा अवाम का मफाद मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगा। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों के खिलाफ 17 जनवरी को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, माजी की तमाम जमातों ने IPPs को सपोर्ट किया। मखसूस तबके को फ़ायदा पहुँचाने के लिए टैक्स लगाए जाते हैं। मैंने आपको पहले अपडेट भी दिया था कि इसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आएगी, पर इंशाल्लाह ये स्टेबलाइज हो जाएगा। और गवर्नमेंट के साथ भी काफ़ी मिल के काम कर रहे हैं। SMEDA के साथ जो इश्यूज़ हैं SMEs की तरफ से उनको डेलिब्रेट किया गया और उसमें जो गवर्नमेंट के एंड पे जो एक्शंस रिक्वायर्ड हैं उन पे डिसीजन लिए गए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने अवाम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। जमील अहमद कहते हैं कि जनवरी में महंगाई में कमी आएगी। 4 से 5 माह अफराते ज़र में उतार चढ़ाव रहेगा। करंट अकाउंट बेहतर है। बरामदात और तरसीलात ज़र का अहम किरदार है। मजीद कहा कि दरामदात पर मरकजी बैंक की जानिब से कोई पाबंदी नहीं। माली साल 2025 में तरसीलात ज़र $35 अरब तक बढ़ने का तखमीना है। कौमी एयरलाइन फिर बेचने की तैयारियां। PIA की निजकारी के लिए दोबारा इज़हार दिलचस्पी की दरख्वास्तें तलब करने का फैसला। IMF को दरख्वास्त करने पर दोनों क्रिटिकल शराइत मान ली गईं। सेक्रेटरी वजारत निजकारी की कायमा कमेटी बराए निजकारी को ब्रीफिंग, बताया कि बिड, सेल्स टैक्स छूट और वाजिबात बिल्कुल क्लियर की शराइत मानी गई हैं। आमिर हयात की बतौर एक्टिंग CEO PIA तकर्रुरी अदालत में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त काबिल समाअत करार। समाअत आइंदा हफ्ते होगी।
इंटरनेट की सुस्त रवि और तात्तुल आलमी कंपनियों ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस बाहर मुंतकिल करना शुरू कर दिए। व्हाट्सएप ने अपना सेशन सर्वर राउटिंग बाहर मुंतकिल कर दिया। पीटीआई के मुताबिक बैरून मुल्क मुंतकली के बायस व्हाट्सएप सारिफीन को सर्विस की फराहमी मुतासिर हुई। मुल्क में फिक्स्ड लाइन और मोबाइल पर इंटरनेट बेहतर हुआ। फिक्स्ड लाइन इंटरनेट की स्पीड में पाकिस्तान 139वें और मोबाइल नेटवर्क में पाकिस्तान की रैंकिंग 97वें नंबर पर है। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने सेल्स टैक्स के लिए सनतकारों से ताउन मांग लिया। कहा सेल्स टैक्स के 190 अरब रुपए मिल जाते तो फ़ायदा कराची का है। पानी के लिए हब कैनाल और K4 पर काम तेज़ी से जारी। गार्बेज के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड काम कर रहा है। शहर से 90% कचरा उठ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि हुकूमत दबाव की वजह से फैसले नहीं बदलेगी। हज दरख्वास्तें जमा करवाने से रह जाने वाले आज़मीन के लिए खुशखबरी। वज़ारत मज़हबी उमूर ने सरकारी कोटे की खाली रह जाने वाली 5000 नशिस्तों पर हज दरख्वास्तें तलब कर ली। कल से पहले आइए पहले पाए की बुनियाद पर हज दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। लाइन में खड़े हुए थे, 2 बंदे थे, उन्होंने आके कहा कि ना आप हमें 500 रुपये दे दें या 1000 रुपये, हम ना आपका काम करा देंगे। मतलब मैं गेट से एंटर हुआ तो लड़कों ने कहा कि पैसे दे दो, काम करा देते हैं, आप बैठ जाओ आराम से। फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं खुद कर लूँ। ऐसे 2 काम करवा देंगे। नाकिस नताइज से परेशान तलबा को मजीद परेशानी का सामना। कराची एयरपोर्ट में नामालूम अफराद का तलबा और वालिदैन से रिश्वत लेने का इंकशाफ। स्क्रूटनी फॉर्म जमा करवाने के लिए फी पर्चा 200 रुपये से ज़ायद तलब किए जाने लगे। कायम मकाम चेयरमैन शर्फ अली ने भी नामालूम अफराद की जानिब से रिश्वत खोरी की तस्दीक कर दी। बयान में कहा मुलव्वस अफराद इंटरबोर्ड ऑफिस में तलबा को धमकाने, हिरासा करने और लूट मार में मुलव्वस हैं। चैलेंजेस का सामना करने के लिए इस्लामी मुल्कों को ताउन की ज़रूरत है। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले आलम इस्लाम को शोबा तालीम के फ़रोग़ के लिए बहुत काम करना है। तालीम हमारी मीरास है। ख़वातीन की तालीम का मकसद बेहतर घर और बेहतर मुआशरा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। लकी मरबत में अगवाआत सिविलियंस में से 8 को बाजियाब करा लिया गया। दहशतगर्दों ने 17 अफराद को अगवा किया था। अगवा के बाद मकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आग लगा दी गई थी। मज़ीद मुखबियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। कराची में शहरी को अगवा करके क्रिप्टो करेंसी की डकैती में मुलव्वस अफसरान ओहदे से फारिग। CTD के अफसरान राजा बशीर, मोहम्मद उमैर और साहिबजादा अली रसा शामिल। 3 अफसरान पर शहरी को अगवा करने और करोड़ों रुपए गैर कानूनी तौर पर ट्रांसफर करने का इल्जाम है। मेयर कराची के नोटिस पर गोरकनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू। डायरेक्टर कब्रिस्तान और पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन। 60,000 की कब्र फरोख्त करने वाला गोरकन गिरफ्तार। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कब्रिस्तानों में पुरानी कब्रें खोद कर तदफीन की इजाज़त नहीं होगी। दहशतगर्दों के लिए खौफ और दहशत की अलामत। बहादुरी, जुर्रत और शुजात का दूसरा नाम। सिंध पुलिस के सपूत चौधरी असलम की 11वीं बरसी। SP CID को लियारी एक्सप्रेस वे पर खुदकुश हमले में शहीद किया गया था। हमले में चौधरी असलम समेत उनके ड्राइवर और गनमैन भी जाँ बहक हुए। मुल्क भर में सर्दी का राज। आज़ाद कश्मीर में बारिशें, पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। लेह में पारा -13 और इस्तोर में -11 रहा। जानोई से ताबुट तक शहरा ट्रैफिक के लिए बंद। वादी नीलम में ताज़ा बर्फबारी के बाद यकबस्ता हवाओं ने बसेरा कर लिया। कल्लात में खून जमा देने वाली सर्दी। पारा -7, कोयटा में -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। लाहौर इस्लामाबाद में भी ठंड बरकरार। कराची में भी सर्दी जोर दिखाने लगी। पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज से सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान। कोयटा के शहरियों को शदीद सर्दी के साथ मसाइल का सामना। यख मौसम में गैस की किल्लत ने चूल्हे ठंडे कर दिए। गैस से महरूम शहरियों के लिए लकड़ियां खरीदना भी मुहाल। शदीद सर्दी में लकड़ियों की कीमतों में इजाफे से भी शहरी परेशान। गजा में इसराइली दहशतगर्दी में तेजी। रात से जारी हमलों में 70 फलस्तीनी शहीद, 104 जख्मी हो गए। सुबह सवेरे इसराइली जंगी तैयारों ने जबालिया, अल-बिलाद, नसीरात, शिमाली और वस्ती गजा, खान यूनुस और गजा सिटी में खून की होली खेली।
शोधा में बेशतर ख़वातीन और बच्चे शामिल। गजा में शोधा की मजमूई तादाद 45,936 तक जा पहुंची। शुमाली गजा में मजहमतकारों ने रॉकेट दाग कर टैंक उड़ा दिया, 3 सयूनी फौजी हलाक। ग्रेटर इसराइल के नक्शे पर इस्लामी ताउन तंजीम भी बोल उठी। अरब सरजमीन के इलाक़ पर मबनी नक्शा बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। OIC ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ 15 माह से जारी इसराइली नस्ल कुशी की तमाम खिलाफ वर्जियों और जराइम को ख़त्म करने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करे। सऊदी अरब को भी इसराइली नक्शे की मजम्मत। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि इंतहा पसंदाना इक़दामात इसराइली हुक्काम के ग़ासिबाना इरादों को ज़ाहिर करते हैं। लिबनान में 2 साल बाद नए सदर का इंतखाब। पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ जोसेफ ऑन को सदर चुन लिया। जोसेफ ऑन को 128 रुकनी पार्लियामेंट में 99 वोट मिले। 2 साल कबल मशल ऑन की मुद्दत खत्म होने के बाद से सदर का ओहदा खाली था। जोसेफ ऑन का कहना है कि उनके चुनाव से शाम के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। नौजवान बल्लेबाज साइम अयूब का लंदन में इलाज जारी। पाकिस्तानी क्रिकेटर की तखनीकी चोट का मुआयना कराने सेंट्रल लंदन के क्लिनिक आमद। साइम अयूब का गुज़िश्ता रोज़ भी सेंट्रल लंदन की एक क्लिनिक में मुआयना किया गया था। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का कहना है कि इलाज के हवाले से मस्बत पेशरफ्त हो रही है। मुआयने की रिपोर्ट जल्द सामने आ जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की तैयारियां मुकम्मल। इंतजामात का जायजा लेने के लिए ICC के वफ्द का नेशनल स्टेडियम का दौरा। PCB के डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला ने वफ्द को ब्रीफिंग दी। और पंजाबी फिल्मों के सुल्तान मारूफ अदाकार सुल्तान राही को बिछड़े 28 बरस बीत गए। सुल्तान राही ने उर्दू पंजाबी की 800 से ज़ायदा फिल्मों में फ़न के जौहर दिखाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। उनकी फिल्म मौला जट ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़े।